ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ گجرانوالہ میں باپ بیٹی کے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ قاتل سوتیلا بھائی نکلا۔ پولیس نے مرکزی ملزم اور اس کے ساتھی کو صادق آباد سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ساتھی کے ساتھ مل کر بھائی اور اس کی بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ مقتول میری بیوی سے مجھے طلاق دلوا کر خود شادی کرنا چاہتا تھا۔ پولیس نے گرفتار ملزمان سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ رشتوں کا تقدس رہا نہ مان۔ عارف والا میں جائیداد کے لالچ میں بیٹی نے باپ کو قتل کروا دیا۔ پولیس نے ملزمہ اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق احمد یار کو داماد اور بیٹی نے زمین کے تنازع پر 2 ماہ قبل اغوا کیا، جس کی لاش برآمد ہو گئی۔ 2 ماہ قبل اغوا کا مقدمہ ملزمان کے خلاف تھانہ صدر عارف والا میں درج ہے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی۔ بھیرا میں درینہ دشمنی پر فائرنگ سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ میانی کے حدود میں موٹر سائیکل سواروں نے کار سوار پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے ایک شخص قتل ہو گیا۔ واقعہ درینہ دشمنی پر پیش آیا۔ پولیس اور فرانسک ٹیم نے جے وقوع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اٹک میں مبینہ پولیس مقابلہ، گرفتار ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اٹک سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اٹک میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، گرفتار ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے۔ اٹک میں مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اٹک میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، جس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ گوجرا میں مہدی شاہ بازار میں موبائل شاپ پر چوری کی واردات ہوئی۔ 2 چور موبائل فون چوری کر کے فرار ہو گئے۔ گجرا واقعے کی CCTV فوٹیج ABN نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ فوٹیج میں 2 نوجوانوں کو موبائل کی خریداری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دکاندار کے مطابق چور 35 مالیت کا موبائل فون چرا کر لے اڑے ہیں۔ نیپال پور میں چوری کی واردات، چور دکان سے نقدی چوری کر کے فرار ہو گئے۔ غلہ منڈی روڈ ہار اور صحرا دکان پر رات گئے چوری کی واردات ہوئی ہے۔ چور دکان کی چھت کی پچھلی دیوار میں نقب لگا کر نقدی اور ہار لے کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس تھانہ سٹی نے موقع پر پہنچ کر باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ متاثرہ شخص نے کارروائی کے لیے درخواست متعلقہ تھانہ میں دے دی ہے اور ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ گڑھا موڑ میں ڈاکو اور چور بے لگام ہو گئے۔ مسلح ڈاکو دن دہاڑے سگریٹ کی سیل مین سے نقدی اور قیمتی موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ شہری سگریٹ کو فروخت کرنے کے لیے گھر سے بازار آ رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے اسلحے کے زور پر نقدی اور قیمتی موبائل چھین لیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ گجرانوالہ میں تیز رفتار مزدہ ٹرک نے کنگنی والا کے قریب 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار دونوں بھائی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق مزدہ ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ جاں بحق ہونے والے بھائیوں کی شناخت 13 سالہ اسد اللہ اور 23 سالہ خضر کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شکر گڑھ میں تیز رفتاری کے باعث 3 مختلف ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 4 خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ظفروال روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ سراج کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے، جبکہ پٹلی سیدہ موڑ پر ہائی ایس ویگن کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت توحید، آصف اور حاجی راشد کے نام سے ہوئی۔ لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئیں، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ میاں چنو میں نیشنل ہائی وے پر مسافر بس اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ نادرا آفس میاں چنو کے قریب بس اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کی وجہ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ ریسکیو نے لاش کو سول ہسپتال میاں چنو منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت عثمان سکنا میاں چنو کے نام سے ہوئی ہے۔ نیپال پور میں ٹرک نے پیدل سڑک کراس کرتے شخص کو کچل ڈالا۔ حادثے کے نتیجے میں 50 سالہ شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ نوید کوٹ میں تیز رفتار ٹرک نے پیدل سڑک کراس کرتے ہوئے شخص کو کچل دیا۔ حادثے میں 50 سالہ شخص ہیڈ انجری اور ملٹی فریکچرز کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو ضروری کارروائی کرنے کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 50 سالہ محمد اسلم کے نام سے ہوئی۔
खानेवाल में आवारा कुत्तों का बकरियों पर हमला, मुतादिद बकरियां हलाक हो गई। नवाही गांव 136 10 में आवारा कुत्तों ने किसान की कई बकरियां चीर फाड़ डाली। मुतादिद बार अवामी शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं की। आवारा कुत्तों के बकरियों पर मुतादिद वाकयात रोनुमा हो चुके। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने और इन आवारा कुत्तों की फौरी तल्फी का मुतालबा किया है। हारूनाबाद से पहला मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद के नवाही इलाके खाटा में दरख्त से गिरने वाला मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मरीज के लवाकिन ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। फैसलाबाद में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान है। ताजिरों का कहना है कि महंगाई के बायस गाहक नहीं है। देखेंगे शेख इरफान की रिपोर्ट। महंगाई के जो हालात बने हुए हैं, गरीब आदमी पिस के रह गया है। बिजली और गैस के बिलों ने जहां गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी, वहां सनतकार तबका भी शदीद परेशानी का शिकार है। हुकूमत अगर डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में ठहराव ला सकती है तो महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती। इस वजह से गरीब आदमी दालों और सब्जियों पर भी गुजारा नहीं कर पा रहा। ताजर तबका ने हुकूमत बाला के आला हकाम से अपील की है कि बिजली और गैस की कीमतों में कमी के साथ साथ खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी लाई जाए ताकि गरीब आवाम को भी रिलीफ मिल सके। प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना है कि महंगाई हमारी 4% से भी शायद कम आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं तो हमें महंगाई में कमी नजर उस तरह नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए। एक मसनूई महंगाई का मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर एक मामला चल रहा है और गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, ना सिर्फ फेडरल को बल्कि पंजाब हुकूमत को भी, ताकि एक आम बंदे को उसमें रिलीफ मिल सके। ताजर तबका करोड़ों रुपए का सामान दुकानों पर रखकर बैठे हैं मगर खरीदने वाला कोई नहीं। समरियाल शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मसनूई महंगाई का राज कायम। मकामी इंतजामिया गरा फरोशों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। तहसील भर में सरकारी रेट लिस्ट पर शहरियों को अशिया ज़रूरिया की फरोख्त के बजाय मनमानी कीमतें वसूल करके बदस्तूर दोनों हाथों से लूटने का अमल जारी है। कसाबों की तरफ से छोटा गोश्त हुकूमती निर्खनामा 1800 रुपये किलोग्राम के बजाय 2200 रुपये, बड़ा गोश्त 900 रुपये के बजाय 1200 रुपये फरोख्त हो रहा है। ब्रॉयलर गोश्त 418 रुपये के बजाय 500 रुपये, अंडा फार्मी 324 रुपये दर्जन के बजाय 400 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। फलों में सेब अवल 235 रुपये किलोग्राम के बजाय 350 रुपये, अनार कंधारी 340 रुपये के बजाय 450 रुपये में फरोख्त हो रहा है और प्याज 134 रुपये के बजाय 200 रुपये, टमाटर 147 के बजाय 210 रुपये, लहसुन देसी 660 रुपये के बजाय 800 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। कसूर में महंगाई से शहरी परेशान है। दीगर अशिया के साथ साथ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को भी पड़ लग गए। देखेंगे मियां काशिफ की रिपोर्ट। के हाथों मजबूर कसूर की गरीब आवाम को जहां दालें, घी, चीनी, मसाला जात और सब्जियां महंगी खरीदना पड़ती हैं, तो दूसरी जानब बीमार होने के बाद सेहतमंद होने और अपनी जान बचाने के लिए अद्वियात खरीदना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ और मुझे ब्लड का मसला है। हॉस्पिटल में चले जाए तो वहाँ से दवाई नहीं मिलती। अगर हम मेडिकल स्टोर में आए तो वहाँ भी इतनी महंगी दवाइयाँ कि हमारी पहुँच से दूर है। खुदाया ये हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि हम गरीबों के लिए जान बचाने वाली तो कोई दवाएं जो सस्ती कर दे, हमारी पहुँच से दूर है। इतनी ज़्यादा महंगाई है, पहले तो हमें दाल, चीनी, घी के लिए दुकानों पे खरीदना मुश्किल है, ऊपर से अद्वियात इतनी महंगी है कि हम अगर कोई बीमार बच्चा या हम हो जाते हैं तो हमारे पास इतने नहीं है कि हम दवाई खरीद सकें। शहरियों का कहना है कि रिलीफ के दावे करने वाली मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम के हाल पर तरस खाए और अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि बीमारी की हालत में गरीब आवाम अद्वियात खरीद कर अपनी जान बचा सके। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज, कसूर। ननकाना साहब में ट्रैफिक का जाम मामूल बन चुका है, जिससे शहरी और ताजर परेशानी का शिकार हैं। ननकाना साहब के मरकजी इलाके बेरी चौक, पीपल वाला चौक, मंडी मोड़ और तहसील मोड़ पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहने लगा है। शहरियों का कहना था कि चौक चौराहों पर ट्रैफिक वार्डन न होने के बराबर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक के बेहंगम दबाव की वजह से DHQ अस्पताल में एम्बुलेंस और इमरजेंसी मरीजों को ले जाना पुलिस रात से गुजरने के मुतरादिफ हो गया है। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक इंतजामात को बेहतर किया जाए।
कलर सैयदा में वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों के मुताबिक शहर की छोटी बड़ी गलियां खुसूसन पिंडी रोड पर सीवरेज का गंदा पानी और जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं, जिससे न सिर्फ आवाम को गुजरने में मुश्किलात बल्कि मुख्तलिफ अमराज फैलने का भी खदशा पैदा हो गया। सीवरेज के गंदे पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। टाउन म्यूनसिपल कमेटी और WMC के अफसरान सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और कमिश्नर रावलपिंडी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ये जो है ना गली, ये इतनी गंदी गली है, इसमें पानी देखें, उसमें सारी चीज़ें देखें। हम नमाज के लिए जाते हैं, हमारी दुकान है इधर, हम बुजुर्ग आदमी हैं, 72 साल मेरी उम्र है और तमाम लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं और हर बंदा इस गली के बारे में कहता है कि सबसे गंदी गली ये है। देख लें कचरा पड़ा है, सीधी सीधी बीमारी है यहाँ पे। ये नालियाँ जो है ये रोडों के ऊपर पानी बह रहा है और ये इंतज़ामिया बेखबर है, बाखबर नहीं। अगर बाखबर होती तो कम से कम ये कचरा यहाँ पे नज़र ना आता हमें। देखें जी हमारे हालात गली के, यहाँ पर कितना पानी इकट्ठा हुआ, दरिया आया हुआ है यहाँ पर डेंगू का मसला, बुजुर्ग यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर हालात देखें क्या है, किसी को पता ही नहीं है। CO साहब हो गए या AC साहब हो गए, उनसे मेरी गुजारिश है देखें यहाँ क्या हालात है। यहाँ का पानी देखें, गटर बंद हुए हैं। ये नहायत अफसोस का मुकाम है कि ये जो जगह है ये एक आम गुज़रगाह है। यहाँ से छोटे बच्चे खासकर स्पेशल जो स्कूलों के हैं वो गुजरते हैं, जो नमाजी हज़रात हैं वो गुजरते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सूरत हाल है कि यहाँ पर पैदल गुजरना जो है ना वो महाल है। लियाकतपुर में 76 करोड़ की लागत से बनने वाला सेम नाला 18 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। सेम नाला मुकम्मल न होने से अब्बासिया की सोना उगलती ज़मीनें बंजर हो रही हैं। देखेंगे अपने नुमाइंदे सैयद आमिर शाह की रिपोर्ट। लियाकतपुर में 18 साल गुजरने के बावजूद 76 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनने वाला सेम नाला ताहाल मुकम्मल ना हो सका। साल 2006 में उस वक्त के MPA चौधरी महमूद अहमद ने अब्बासिया की जमीनों को सेम थोर से बचाने के लिए चन्नी गोड से फिरोजा के मकाम तक 200 से ज्यादा देहातों से सेम का पानी निकालने के लिए सेम नाला मंजूर करवाया। मुख्तलिफ दौर हुकूमत गुजरे लेकिन ताहाल सेम नाला मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से ABN न्यूज से बात करते हुए मकामी जिम्मेदारों काश्तकारों का कहना है, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त सेम नाले का है। ये सेम नाला 2007-8 में शुरू हुआ है लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारी अब्बासिया का किसान बर्बाद हो गया है। रकबे में कुछ काश्त नहीं कर सकते हम लोग इस सेम की वजह से। काफ़ी देहात हैं जो इसकी ज़द में है, तकरीबन 200 देहात है। तो वज़ीर आला से हमारा मुतालबा है कि मेहरबानी करके इसको जो है चालू करवाएं ताकि किसान जो है खुशहाल हो। किसानों काश्तकारों ने कहा कि अब्बासिया सेम नाला में अंधाधुंध करप्शन होने की वजह से ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से अब्बासिया के खुशहाल किसान आज इंतहाई कम्पेसरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद आमिर शाह, ABN न्यूज, लियाकतपुर। बहावल नगर रेलवे स्टेशन पर किसी दौर में 14 से 15 ट्रेनें आती थीं। अब एक रेलवे ट्रेन आ रही थी जो अरसा 10 साल से बंद कर दी गई। शहरियों का हुकूमत से ट्रेन सर्विस बहाल करने का मुतालबा। मजीद देखेंगे मलिक मकबूल की रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन बहावल नगर ये किसी दौर में बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन होता था। यहाँ से 14 से 15 रेलवे ट्रेनें चलती थी। एक रेलवे ट्रेन कराची से बहावल नगर आती थी। बहावल नगर से रेलवे ट्रेन जो है वो बरास्ता, अमरुका और दिल्ली जाया करती थी। 94 में स्टेशन जब तामीर हुआ था उसके बाद से लेकर यहाँ पे तकरीबन 12 ट्रेनें, 6 अप की 6 डाउन की, 2 मालगाड़ियाँ भी आया करती थी। 14 ट्रेनें आया करती थी या 7 अप की 7 डाउन की। लिहाजा अब कोई ट्रेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई रौनक नहीं है, बिल्कुल वीरान कर दिया गया है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ज़िला है पंजाब का जी। बहावल नगर तो बहावलपुर ट्रेन जांदियां सी जी, बहुत सवारी जाती सी बहावलपुर दी। अदालत हाई कोर्ट दी सवारियां जांदियां सी। 12 ट्रेन आंदियां सी, जांदियां 6 आंदियां सी, 6 जांदियां सी, 2-3 माल गड्डियां जांदियां आंदियां सी। और इतने तक इतना रेलवे ट्रैक भी चुक लिया गया है। यहाँ से एक रेलवे ट्रेन जो है समरसट्टा बहावलपुर जाती थी और यहाँ से लोग जो है वो ये यहाँ बड़ी रौनकें होया करती थी। सरगोदा की तहसील साहिवाल के सरकारी अस्पताल में स्टैंड माफिया सरगर्म है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आने वाले शहरियों के मुताबिक अगर कोई शहरी मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा नहीं करता तो पार्किंग स्टैंड माफिया मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स उतार लेता है ताकि मोटरसाइकिल को स्टैंड पर ही खड़ा किया जाए और गरीब व मजबूर लोगों से पैसे बटोरे जाएं, जिसकी वजह से मरीज और उनके वर्सा शदीद जहनी अजियत में मुब्तला हैं और मुतल्लिका हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर रहे हैं।
दीना में भी मौसम सरमा का आगाज होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। शहर भर खुश्क मेवाजात के स्टॉल सज चुके हैं। मजीद जाने के नुमाइंदा फैसल महमूद से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही दीना में खुश मेवाजात की मांग में इजाफा हो चुका है। शहर भर में मुख्तलिफ स्टॉल सज चुके हैं जहां पर शहरी अपने मनपसंद बादाम, मूंगफली, अखरोट और चिरगोज़ा ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ख़रीदार भी परेशान दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पिछले साल हम यहाँ पर अखरोट 800 रुपये लगाए थे, इस साल 650 का बेच रहे हैं। और जैसे कि हमारे पास नयाब चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह, पिस्ता बाज़ार में 32 रेट, आपने यहाँ पर 28 रुपये होलसेल के रेट में लगाए। जी, जैसा कि आपने सुना, दुकानदार का यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें तो बढ़ चुकी हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर को रिलीफ दे रहे हैं। शाहजमाल में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मूंगफली की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्दियों का आगाज होते ही मूंगफली, बादाम और अखरोट की मांग में इजाफा हो जाता है। मौसम सरमा की सौगातों में मूंगफली को अपनी अफादियत और कम कीमत के बायस खास अहमियत हासिल है। जैसे ही मौसम सरमा आता है, बाजारों में मूंगफली की मांग बढ़ जाती है और मुख्तलिफ मकामात पर इसके स्टॉल्स लगने लगते हैं। शहरी जौक दर जौक स्टॉल्स तक पहुँच कर मूंगफली खरीदने आते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ जायके में मजीद मज़ेदार होती है बल्कि सर्दियों में तवानाई की कमी को भी पूरा करती है। इसके अलावा मूंगफली का इस्तेमाल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, जो इसे मकबूल इंतखाब बना रहा है। राजनपुर में सर्दियों के आगाज के साथ ही ड्राई फ्रूट की फरोख्त में इजाफा हो गया है, मगर शहरी कीमतों में इजाफे से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद देखेंगे राव वकील अहमद की रिपोर्ट में। जनपुर में सर्दियां रंग जमाने को तैयार हैं, तो शहरियों ने भी ठंडे मौसम में खुद को महफूज रखने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ड्राई फ्रूट का सर्दियों में इस्तेमाल ज़रूरी होता है, मगर रवां साल ड्राई फ्रूट की कीमतों में 30 से 40% इजाफा होने से शहरी बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट खरीदने से कासिर हैं। दीगर मेवाजात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार कहते हैं, बढ़ती महंगाई की वजह से हमारा कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। ड्राई फ्रूट का सर्दियों में इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। घर में हर मीठा ड्राई फ्रूट के बिना अधूरा समझा जाता था, मगर अब महंगाई की वजह से इनका इस्तेमाल उम्र तक महदूद होकर रह गया है। कैमरामैन नवीद भट्टी के साथ राव वकील अहमद, ABN न्यूज़, राजनपुर। चाय एक मकबूल तरीन मशरूब का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। मेहमानों को चाय पेश करना हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। लोग अपने दिन का आगाज गर्म चाय की प्याली से करते हैं। देखते हैं ये नाला खुर्द से अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट में। शदीद सर्दी से हलकान हो या दिन भर की थकान हो, सुबह सवेरे नींद को भगाना हो या दिन भर की थकावट से छुटकारा पाना हो, बस 2 घूंट भाप उड़ाती गर्म चाय की चुस्कियां सारे मसाइल का हल कर देती हैं। चाय की एक प्याली जहन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान में चाय पेश करना हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। चाय का मकबूल होना तो इस बात की अब वाज़ेह अलामत बन चुका है कि चाय तो अब बाकायदा एक सनत बन चुकी है। पहले होती थी सिर्फ दूध पत्ती, लेकिन अब तो कश्मीरी चाय, सब्ज़ चाय, नीली चाय, पीली चाय, पता नहीं कौन कौन सी चाय आ चुकी है। लेकिन वो असल कड़क चाय दूध पत्ती वाली, वो आज भी हमारे देहात से लेके शहरों तक हर जगह बहुत मकबूल है। जी, चाय हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। दिन भर की थकावट हो या जितनी मर्जी को परेशानी हो, बंदा शाम को चाय का एक कप पी ले तो दिन भर की थकावट और परेशानियों से बंदा पाक हो जाता है और बिल्कुल जिस्मानी तौर पर फ्रेश हो जाता है। दुनिया भर में चाय एक मकबूल तरीन मशरूब का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 2 अरब लोग अपने दिन का आगाज चाय से करते हैं। मेहमान आए या बुजुर्गों की कोई सियासी बैठक हो, दुख की घड़ी हो या खुशी का कोई लम्हा, चाय पिलाना हमारी रवायात में शामिल हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला कुर्द। सर्दी की आमद के साथ ही देही और शहरी इलाकों में साग की खुशबू बावर्ची खानों से उठने लगती है। ये देसी सौगात जो न सिर्फ सर्दियों के खाने का खासा है बल्कि देही सकाफत का एक लाज़मी हिस्सा भी है। अपनी लज्जत और ग़ज़ाइयत की वजह से हर उम्र के अफराद में मकबूल है। देखेंगे बोंगा हयात से राव अब्दुल हमीद की रिपोर्ट। साग पाकिस्तान के दही इलाकों की पहचान है, जो न सिर्फ लज्जत का शाकार है बल्कि सेहत के लिए बेहद मुफीद भी है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कुदरती विटामिन और न्यूट्रिशन मौजूद है, जो इंसानी जिस्म के लिए कई फ़ायदे फराहम करते हैं। साग खास तौर पर सरसों, पालक और बाथू का मुरक्कब है, जो विटामिन A, C और K से भरपूर होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की वाफिर मिकदार मौजूद होती है, जो खून की कमी को दूर करके हड्डियों को मजबूत बनाने और निज़ाम को बेहतर करने में मददगार है। साग जो है सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और कैलोरीज होते हैं, तो हमें चाहिए सर्दियों में जो है इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और अपने बच्चों को
जो है ये डिश बहुत अच्छे तरीके से बना कर देनी चाहिए। साग जो है सर्दियों की एक मरगूब ग़िज़ा है, सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सर्दियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी पाई जाती है, विटामिन्स भी हैं, और गांव में इसकी जो ग़िज़ा है वो सर्दियों में मेहमान नवाजी के तौर पर मक्खन मकई की रोटी बहुत लजीज तरीके से ये पेश की जाती है। अगरचा साग देही इलाकों की सौगात है, लेकिन शहरों में भी इसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। सर्दियों के मौसम में शहरियों की जानिब से साग के साथ मक्खन और मकई की रोटी का नाश्ता एक आम रवायत बन चुका है। साग मक्खन और मकई की रोटी के साथ न सिर्फ एक मुकम्मल ग़िज़ा है बल्कि पाकिस्तानी सकाफत का एक आईना भी है। ये हमारी रवायत, मेहनत और कुदरती वसाइल की अक्कासी करता है। चाहे देहात हो या शहर, साग हर जगह मोहब्बत और जायके का पैगाम देता है। कैमरा टीम के साथ राव अब्दुल हमीद, ABN न्यूज़, बुंगा हयात। फकीरवाली में सर्दियों के आगाज होते ही देसी रुई से तैयार होने वाली रजाई और लिहाफ की भराई का अमल शुरू हो गया है। मकामी तौर पर तैयार होने वाली ये रजाइयाँ सर्दियों में लोगों की ज़रूरियात का अहम हिस्सा बन जाती हैं। ये मकामी तौर पर तैयार होने वाली मसनूआत न सिर्फ मेयार में बेहतर हैं बल्कि कीमत में भी सस्ती होती हैं। मज़ीद देखेंगे अदनान शाह की रिपोर्ट में। सर्दियां शुरू होते ही फकीरवाली में देसी रुई से तैयार होने वाली रजाई और लिहाफ की भरवाई शुरू हो जाती है। देसी रुई को पिंजे में से गुजारकर चादर पर डालकर धुना जाता है और फिर खूबसूरत रंग बिरंगे कवरों से ढांपा जाता है। रजाइयां भरदे हैं असीं, रजाइयां गदेले सराणे प्रिस्टर रूह नालों बहुत बेहतर है कि देसी रुई इस्तेमाल किया जाए। देसी रुई साढ़े दिगर इलाका अपने पिंडा चों आउंदे ने आवाम, देसी रुई ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मैं जी इत्थे देसी रूह दे बने होए सराणे ते गद्दे ते ओह मैं भरवाण आया वां। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਵਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਗੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਟਿਲ हले तक चली जाता। पोलिएस्टर आने के बावजूद फकीरवाली में लोग देसी रुई से बनी रजाइयों और तलाइयों को तरजीह देते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अदनान शाह, ABN न्यूज़ फकीरवाली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही रायवेंड के लंडा बाजारों में खवातीन की कसीर तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई है। मजीद जानेंगे तलहा शेख की रिपोर्ट में। मौसम ने अंगड़ाई ली तो शहरियों की कसीर तादाद ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। बढ़ती हुई महंगाई के बायस ब्रांडेड मलबूसात की कुव्वत खरीद ना रखने वाले मतवसत तबका के अफराद जब लंडा बाजार पहुंचे तो कीमतें सुनकर परेशान हो गए। लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों ने महंगाई का शिकवा करते हुए ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई इन्नी है, बेरोजगारी बहुत हो गई है और गरीब आवाम की पहुँच विच लंडा ऐसी वो भी जो टैक्सा की वजह तो जनाब बहुत महंगा है। लेकिन इस तो अलावा ब्रांडेड चीज़ा किसी गरीब आदमी ने की खरीदनी है तो लिहाजा लंडे तो टैक्स चुकया जाए। टैक्स लगाने की वजह से लंडे की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। ये सर्दी की मलबूसात है, आम आवाम की ज़रूरत है, इस पर से टैक्स को हटाया जाए ताकि ये आम आवाम की रेंज में पहुँचे और आम आवाम इसे खरीद सके। शहरियों ने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि लंडा मलबूसात पर लगाए गए टैक्स को ख़त्म किया जाए ताकि आम आदमी सर्दी से बचाव से अपना जिस्म ढांप सके। कैमरामैन फैसल चुगताई के साथ तलहा शेख, ABN न्यूज़, रायवेंड। रहीम यार खान में लाइव आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद हुआ जिसमें पंजाब भर से आए आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया है और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। देखेंगे उज़र हक चौधरी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में हुनर की उड़ान के उन्वान से आर्ट्स का मुनफरिद कंपटीशन हुआ जिसमें पंजाब भर से आए तलबा व तलबात ने हिस्सा लिया, जिसमें इन्होंने लाइव पेंटिंग, कैलीग्राफी, स्केच और पेपर आर्ट के फन पारे बनाए जिनको देखकर हर कोई दाद देता दिखाई दिया। बच्चों के अंदर भी बहुत टैलेंट है। 4-4 साल के बच्चे भी यहाँ पे बैठ के अपने क्रिएटिविटी को शो करा रहे हैं, तो कि मेरे हिसाब से कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है और एक सही डायरेक्शन बच्चों को दी जा रही है। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर आर्टिस्ट फातिमा नसीम का कहना था कि इस प्रोग्राम में पंजाब भर से 85 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया है। हमारे रहीम यार खान के बच्चों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ के बच्चों का हुनर भी जो है सामने आए। हमें हमारे जो साउथ पंजाब की जो मिट्टी है वो ज़रखेज़ है, उसको ज़रा नम जो है
उसके अंदर हमने थोड़ी सी नमी पैदा की है, हुनर की उड़ान दी है। नुमाइश में शरीक आर्टिस्टों ने सकाफत, कैलीग्राफी, लैंडस्केप और दीगर अहम मौज़ूआत पर अपने फन का मुजाहिरा किया। हुनर की उड़ान कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले नौजवान आर्टिस्टों का कहना है कि ऐसी तकरीबात से इनके अंदर छुपी टैलेंट को बाहर निकालने का मौका मिलता है। कैमरा टीम के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। ज़माने की जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी के बायस फुटबॉल के हुनरमंदों को शदीद मुश्किलात का सामना है और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से अफरादी कुव्वत में कमी हो रही है। मज़ीद देखेंगे सियालकोट से जफर वसीम की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल जी, दुनिया में खेलों के लिहाज से मशहूर सियालकोट में फुटबॉल इंडस्ट्री न सिर्फ कौमी मईशत के इस्तेकाम बल्कि के मकामी अफराद को रोज़गार की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रही है। ताहम ज़माने की जिद्दत और फुटबॉल मेकिंग में जदीद टेक्नोलॉजी बिलअसूल लेदर कटी के लिए लेज़र मशीन्स के इस्तेमाल ने फुटबॉल के हुनरमंदों को बेरोज़गार कर रखा है। जिस तरह दुनिया जो है वो काफ़ी तरक्की कर चुकी है, इसी लिहाज से फ़ुटबॉल जो है सियालकोट में वो भी सनत काफ़ी जो है वो तरक्की कर रही है। इसमें जिद्दत आ चुकी है। जो पहले हैंड स्टिच बॉल बनता था, लेमिनेशन के बाद जो है वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस था। अब जो है वो मशीन स्टिच हो रहा है बॉल और मोल्टेड बॉल बनता है। इससे जो है वो काफ़ी जो तादाद में भी इजाफा होता है। पहले जो अगर वो प्रोडक्शन जो दिन में हुआ करती थी वो 500 बॉल की या 1000 बॉल की, अब वो प्रोडक्शन जो है वो कम से कम 4 से 5 हज़ार की डेली की हो सकती है। हुनरमंद तबका जो है वो उस पर शदीद मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए हुकूमत बिलखसूस सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वर्कशॉप्स व दीगर तकरीबात मुनक्कद करवाना होंगी ताकि फुटबॉल की इंडस्ट्री न सिर्फ कौमी मईशत के इस्तेहकाम में मज़ीद अहम किरदार अदा कर सके बल्कि के मकामी अफराद को रोज़गार की फराहमी में भी अहम किरदार अदा कर सके। करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। मानसहरा के नवाही इलाके भेरकुंड में जिरगा के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी, एक शदीद जख्मी हो गया। थाना खाकी के हदूद भेरकुंड में लड़की के तनाज़े पर मुनक़दा जरगे में दोनों फरीक़ैन आपस में उलझ पड़े। लड़ाई के नतीजे में फायरिंग से फरीद नामी शख्स जाँ भाग जबकि फारूक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और मकतूल की लाश हस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। शांगला के नवाही इलाके में 2 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में घर के साजो सामान समेत हर चीज जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि मुतासरा खानदान मौजज़ाना तौर पर बच गया। मालिक मकान फैजुद्दीन ने मेहनत मजदूरी करके घर बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से आग के बेरहम शोलों की नजर हो गया। इब्तदाई तलात के मुताबिक घर में जेवरात, फर्नीचर, बिस्तरे और दीगर लाखों रुपए मालियत का घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर, खानदान हुकूमती इमदाद का मुंतजिर। तनावल का सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल की इमारत मुनहदम हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। देखेंगे चंगेज खान तनोली की रिपोर्ट। तनावल के मरकज लसन नवाब में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लसन नवाब की बिल्डिंग का एक हिस्सा कुछ अरसा कबल गिर कर तबाह हो गया था। बाकी मानदा बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। वो किसी भी वक्त गिर कर बड़े हादसे का सबब बन सकती है। स्कूल में 600 बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, जिनके सर पर हर वक्त खौफ के साए मंडलाते रहते हैं। बच्चियां शदीद सर्दी के बावजूद भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ABN न्यूज़ पर मुतअद्दिद बार इस मसले को उजागर किया गया, मगर मुतलका इदारे आते हैं, सर्वे करके फ़ोटो शूट करके चले जाते हैं, जबकि मुतलका सियासी नुमाइंदे भी किसी बड़े हादसे के इंतज़ार में हैं ताकि वो भी फ़ोटो शूट करा सकें। बच्चियों के वालिदैन ने मिनिस्टर एजुकेशन KPK और वज़ीर आला KPK से दरख्वास्त की है कि वो मुतलका इदारों और महकमा एजुकेशन मानसहरा की इस नाअहली का फौरी नोटिस लें और फिल फॉर स्कूल की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए फ़ंड्स की फराहमी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन मलिक नईम सरदार के साथ जंगेज़ खान तनोली, ABN न्यूज़, तनावल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला कोहाट में भी महंगाई का राज रोज़ बरोज़ अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं और आवाम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि वो महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात करें। मज़ीद देखते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोहाट की अवाम भी हर सुबह बढ़ती हुई कीमतों का सामना कर रहे हैं। अगर दालों की बात की जाए तो दाल, चना, लोबिया, छोले और दीगर दालों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। अदरक, लहसुन, टमाटर, आलू, प्याज, कद्दू, करेला और
अरवी समेत दीगर सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आवाम ने हुकूमत से अपील की है कि वो कीमतों को कंट्रोल में लाते हुए आम आदमी की मुश्किलात को कम करें ताकि मुतवस्सित तबका इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके। अब्दुल बासित, ABN न्यूज़, कोहाट। मर्दान की तहसील काटलिंग में वाक़ जमालगढ़ी के आसार कदीमा बुद्धमत की 1वीं से 5वीं सदी ईस्वी की तहजीब का अनमोल खजाना है। ये आसार अपनी तारीखी अहमियत, दिलकश मनाजिर और मुनफरद तर्ज तामीर की बदौलत सयाहों के लिए खास कशिश रखते हैं। मज़ीद जानेंगे मुराद अली सरकानी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान तहसील काटलंग में वाक़िया जमालगढ़ी के आसार कदीमा न सिर्फ तारीख़ी अहमियत रखते हैं बल्कि सयाहों के लिए भी ख़ास कशिश का बाइस है। ये बुद्धमत के कदीम आसार 1ली सदी से 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान तामीर किए गए थे। ये आसार कदीमा मर्दान शहर से 14 किलोमीटर शुमाल की जानिब वाक़िया जमालगढ़ी गाँव की पहाड़ी में 1233 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। ये आसार तख्तबाई और शुमाली मर्दान के दरमियान में वाक़या है और मकामी अफराद इन्हें बया जावख्त यानी बादशाह का तख्त के नाम से पुकारते हैं। ये तारीख़ी आसार नहायत दिलकश मंजर पेश करते हैं और बुद्धमत के हनकाहों और स्तूपों पर मुश्तमिल है। 1ली और 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान तामीर होने वाले ये आसार बुद्धमत की तारीख और तहजीब का एक अनमोल खजाना है। सर एलेक्जेंडर किंगम ने 1852 में इन आसार को दरियाफ्त किया, जिसके बाद मुख्तलिफ अदवार में खुदाई की गई। इन खुदाइयों में नायाब मुजस्समे, सिक्के और दीगर कीमती अशिया दरियाफ्त हुए जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और पेशावर म्यूजियम में महफूज है। 1907 से लेकर 1924 ईस्वी तक मजीद खुदाइयों और इन आसार के तहफ़्फ़ुज़ का अमल जारी रहा। यहाँ से मिलने वाली अशिया बुद्धमत की तारीख को समझने के लिए अहम है। जमालगढ़ी का मरकज़ी स्तूपा 3 हिस्सों में तकसीम है, जिनमें मरकज़ी स्तूपा कोट, जुड़वा स्तूनों वाला हिस्सा और ज़ीरी स्तूपा शामिल है। 2012 और 13 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मज़ीद खुदाई की गई, जिसमें मिलने वाले नवादिरात को अवाम के लिए नुमाइश में पेश किया गया। ये तारीख़ी मकाम न सिर्फ अपनी कदीम तामीरात की वजह से मशहूर है बल्कि सयाहों के लिए भी बाइस कशिश है। जमालगढ़ी के ये आसार बुद्धमत की तारीख़ को जानने के लिए एक अहम मुकाम है और आसार कदीमा की दुनिया में इनका अपना मुनफरिद मुकाम है। यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक समेत अंदरूनी इलाक़ों से भी सयाह विज़िट करने आते हैं। आसार कदीमा जमालगढ़ी में आने वाले सयाहों का यही शिकवा है कि यहाँ पर वो सहूलियात मुयसर नहीं जो सयाहों के लिए होना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा ABN न्यूज़ के लिए तहसील काटलंग से मुराद अली सरकानी। लोअर दीर में मेडिकल के शोबे में नर्सेस की अहमियत उजागर करने के गर्ज से दीरपाइन के हेडक्वार्टर तिमरगरह में ज़ेर तरबियत नर्सेस के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नर्सेस एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान, डॉक्टर्स और माहिरीन तालीम ने खुसूसी शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में नर्सेस इंसानी ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों नर्सेस भर्ती करने की मज़ीद ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम उठाने चाहिए। तकरीब के दौरान ज़ेर तरबियत मेल और फीमेल नर्सेस ने निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ज़ेर तरबियत नर्सेस में एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की गईं, जबकि मेहमानों में तहाइफ भी दिए गए। खूबसूरती और कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर वादी सवात अपनी ज़रखेज़ ज़मीनों के हवाले से भी शोहरत रखती है। इस वक्त सवात के बागात में जापानी फल की बहार है, जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सवात से हमारे नुमाइंदे हयात चमन की रिपोर्ट में। ये है हसीन वादी सवात, जहाँ की जरखीज जमीनों पर उगने वाले जापानी फल इस वक्त अपनी मिठास और रसीले जायके के साथ तैयार हो चुके हैं। जापानी फल अपनी मुनफरिद जायके की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। जापानी फल का सीज़न स्टार्ट है और ये जापानी फल के बागात इसी तरह पहाड़ों में भी है और मैदानी इलाकों में भी काफ़ी सारे बागात पाए जाते हैं। यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर ये ट्रक वगैरह जाते हैं। वादी सवात का ये फल अपनी मिठास के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बैरूनी ममालिक में न सिर्फ लोगों को लज्जत फराहम करता है बल्कि कीमती ज़री मुबादला का जरिया भी है। जापानी फल जो है ये सवात में बहुत ज्यादा पाया जाता है कि बागात जो है वो 20,000 अराजी एकड़ पर मुश्तमिल है। जापानी फल की ये मिठास और लज्जत सवात के किसानों के लिए न सिर्फ खुशियों का पैगाम है बल्कि पाकिस्तान के मईशत को मजबूत बनाने में भी अपना हिस्सा डाल रही है। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़, सवात। और अब रुख करेंगे सिंध का।
थरपारकर के शहर मिट्टी के नवाही गांव भीमासर में आरओ प्लांट नाकारा होने की वजह से गांव में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। पानी की किल्लत से इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 12 साल पहले गांव में एक आरओ प्लांट लगवाया था जो कि पिछले कुछ दिनों से गैर फाल है। हम मुंतखब नुमाइंदों और जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारे गाँव में पानी के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सजावल के झीलों और तालाबों के मीठे पानी की ताज़ा मछली की मांग में इजाफा हो गया। यहाँ की मछली रोजाना कई मनों की तादाद में फरोख्त हो रही है, जिससे मछली फरोशों की चांदी हो गई। मजीद जानेंगे सजावल से इस रिपोर्ट। मांग भी बढ़ गई, जिसका अंदाजा लगाकर मछली फरोशों ने भी मछली की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहरी पसंद के लिहाज से मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ खरीदने आते हैं। इस वक्त मार्केट में फी किलो मछली के निरखों में 200 से 400 रुपए तक का इजाफा हो गया। सजावल की झीलों और तालाबों की ताज़ा जायकेदार मछली सस्ती हो या महंगी, शहरी खरीदने जरूर आते हैं। शहरियों की पसंदीदा मछलियों में मोराखी, शिंगारी, फौजी, रहू, खग्गा और दीगर इकसाम शामिल हैं। मछली के बढ़ते दाम देखकर खरीदारों ने कहा कि आम दिनों की निस्बत सर्द मौसम में मछली खाने का शौक उनको मछली मार्केट का रुख करने पर मजबूर करता है, मगर कीमतें देखकर वो मायूस हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मछली की कीमत में खातिर खा इजाफा हुआ है। जो मच्छी भी थोड़ी अभी महंगी है, इस वजह से मैं कहूँगा कि सब्जी से जो मच्छी अच्छी है, इसीलिए हम गोश्त वगैरह भी करते हैं। शहरियों का कहना है कि वो सर्दी के मौसम में दूसरे खानों की निस्बत मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मछली सेहत के लिए ज्यादा मुफीद है। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। अब शहर में डकैती की वारदात, मुसल्लह डाकुओं असलहे के जोर पर ताजिर से 2 लाख नकदी मोबाइल फोन लूटकर बासानी फरार। पुलिस स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम। हब सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद कराची स्टॉप के मकाम पर 3 मुसल्लह डाकू दुकानदार से 2 लाख रुपए नकदी और वहां मौजूद ग्राहक से मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। जब हब शहर में जराइम में इजाफे के सबब ताजिर बरादरी और शहरी खौफ हिरास में मुब्तला हैं। ताजिर बरादरी के मुताबिक हब सर्कल पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हब शहर में पुलिस का गश्त न होने के बराबर पुलिस ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय भत्ता वसूलियों में मसरूफ़ है, जिसके सबब चोर डाकू जब चाहे जहाँ चाहे किसी को लूट कर बासानी फरार हो जाते हैं। जल मगजी में सालाना 3 रोज़ा डेजर्ट जी प्रेस रैली इख्तिताम पजीर हो गई है। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद अफरीदी ने भी रेसर गाड़ी में ट्रैक का जायजा लिया। क्वालिफाइंग स्टॉक, खवातीन और प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबले मुनाकिद हुए। डेजर्ट रेस रैली के प्रीपेड कैटेगरी मेज़बान नवाब मगजी खानदान ने अपने नाम कर ली। सालाना डेजर्ट जीप रैली की मेज़बानी रुकने सिंध असम्बली नादर मगजी और MNA आमिर मगजी ने की। प्रीपेड कैटेगरी में 29 रेसर गाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रीपेड कैटेगरी में पहली पोजीशन MNA खालिद मगजी के बेटे जाफर मगजी ने हासिल की। दूसरी पोजीशन अनस मगजी और तीसरी पोजीशन नादर मगजी ने जीत ली है। खवातीन कैटेगरी में सैयदा रिदा ज़ैनब ने मैदान मार लिया। 170 किलोमीटर की खतरनाक और दुश्वार गुजार ट्रैक पर 1 दर्जन गाड़ियां खराब, 3 हादसे का शिकार। दफाई चैंपियन फैसल शादी खेल, आसिफ चौधरी, साहबजादा सुल्तान और दीगर की गाड़ियां खराब होने से रेस से बाहर हो गई। जीप रेस की चारों कैटेगरीज में कामयाब रेसर्स के हतमी नामों का ऐलान आज रात 10 बजे किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की अहम मुलाकात। मसला कश्मीर और खित्ते की तरक्की के हवाले से अहम फैसले किए गए। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मसला कश्मीर को अंदरून और बैरून मुल्क जारहाना अंदाज में उठाने का इरादा किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा है और इनकी ये जिद्दोजहद भारत के जाबिराना कब्जे से आज़ादी तक जारी रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जाएंगे। वादी नीलम में मुसाफिर जीप हादसे का शिकार। हादसे में 4 अफराद जाँ भाग जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। बालाई नीलम कील मारगला के मकाम पर मुसाफिर जीप हादसे का शिकार हो गई। जीप में एक ही खानदान के 11 अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक शारदा से है बताया जाता है। MST HQ अस्पताल कील के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाँ भाग हो गए। गाड़ी पर सवार 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। शदीद जख्मियों को THQ अस्पताल 8 मकाम मुंतकिल किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके बसंत कोट में गहरी खाई में कायम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल, जहां बच्चे इंतहाई खतरनाक जगह पर पत्थरों पर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
प्राइमरी स्कूल बसंत कोट जो एक गहरी खाई में वाक़ है। स्कूल की इमारत 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ले में तबाह हुई, जिसके बाद निजी NGO की मदद से शेल्टर बनाया गया, जिसका काम अधूरा रहा, जो ताहाल इसी हालत में है। स्कूल में फर्नीचर, पीने का पानी और वॉशरूम्स मौजूद नहीं हैं। स्कूल की इतनी हालात ख़राब है कि बच्चे की तादाद भी कम हो गई। सर्दी में बच्चे को था वो अब बस हमें छपरा स्कूल तो नहीं बल्कि छपरा ही है। हम यहाँ खुले आसमान के नीचे पत्थरों के नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं। बारिश में हमें बहुत मजबूरी आती है, ऊपर से पानी आता है। सर्दी में हुकूमत हमें कुर्सियाँ दे और उस्तादों की बैठने के लिए जगह दे और एक इमारत बना के दे। स्कूल की इमारत तबाह हुए 19 साल बीत गए, जिसके बाद हल्के में कई मुशीर वजीर आए और गए। सबके ऐलानात महज बयानात तक ही महदूद रहे। बच्चे बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए किसी मसीहा के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। और अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान में 2 संगीन हादसात रोनमा हुए हैं। दोनों हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। रोंदो मलूपा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में एक कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दोनों हादसात की तहकीकात की जा रही हैं और इंतजामी की जानिब से अवाम को खबरदार भी किया गया है। ज़िला गैज़र की तहसील पोन्याल की मशहूर सौगात कैलायोस जो सबको पसंद है, बादाम, अखरोट और खुबानी से तैयार की जाती है। इसकी तैयारी के कई दिलचस्प मराहिल हैं। इस हवाले से गैज़र से देखेंगे किरण कासिम की रिपोर्ट में। जिला गैज़र की खास सौगात केलाओ जो धूप में सुखाने के बाद और भी लजीज होती है। केलाओ को तैयार करने के मराहिल बड़े दिलचस्प और मुशक्कत तलब हैं। अंगूर के रस को पहले शीरे में तब्दील किया जाता है, फिर धागों में पिरोए बादाम और अखरोट को शीरे में बार बार डुबोया जाता है। दिन रात सुखाने के बाद सौगात तैयार है, जिसे मार्केट में 2000 से 3000 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाता है। केलाओ की ये खासियत है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली कुदरती अज्जा और सलीके से तैयारी की वजह से इसका जायका बेहद लजीज और मुनफरिद होता है। केलाओ बनाने के लिए हम सबसे पहले इस रस को सही से बॉईल करते हैं, उसमें गंदम का आटा मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं। उसके बाद फिर अखरोट और बादाम को धागों में पिरो के फिर उसके ऊपर ये पेस्ट लगाया जाता है और फिर 6 से 7 दिनों के लिए इसको धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। और ये सौगात जिला गैज़र की एक अहम पहचान भी है। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़, गैज़र। स्कर्दू में इन दिनों खुबानी के पत्तों की सुर्खी, चेरी के पत्तों के रंग, दरियाओं झीलों के किनारे लगे वैद सेब के दरख्तों के सोना बिखेरते तलाई रंग जमीन पर रंगों का एक समा बांध देते हैं। देखते हैं स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे याहिया खान की रिपोर्ट। स्कर्दू में खिजा के खूबसूरत रंग सबको भा गए। खूबसूरत खिजा का मंजर सयाहों को अपने सहर में मुब्तला करने लगा। स्कर्दू में मौसम की तब्दीली के बाद दरख्तों के पत्तों ने भी अपना रंग बदल लिया। जर्द और जामनी रंगों ने नजारे दिलकश कर दिए। कचोरा में वाक़े शंग्रीला झील खिजा के रंगों से भर गई। सयाहों के चेहरे भी खिल उठे। जमीन पर बनी जर्द पत्तों की चादर और हवा के झोंकों से होने वाली सरसराहट दिल के तार हिलाने के लिए काफी। सयाह अपर कचोरा झील में कश्तीरानी से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने खिजा के मनाजिर को कैमरों में भी महफूज कर लिया। बर्फीले पहाड़, सर्द हवाएं और पतझड़ का मौसम खिजा की रंगीनियां जाहिर करने के लिए काफी है। मैं यहाँ पर अच्छे फ्लावर्स देखने आई हूँ और कलरफुल फ्लावर्स देखने आई हूँ और मुझे यहाँ का लेक बहुत अच्छा लगा है। यहाँ की मैंने जो प्लेसेस विजिट की हैं उसके अंदर खपलू स्पेशली वो बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगी अगर कोई भी जाना चाहता है और यहाँ के जो है स्पेशली जो उनकी नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करना चाहता है तो वो जो है वो खपलू का टूर जो है वो ज़रूर अरेंज करे। अजीम पहाड़ी सिलसिलों में घिरे इलाकों में दरख्तों और पत्तों ने जर्द लिबास ओढ़ लिया है, जिससे इलाके का हुस्न दुबाला हो गया है। कुछ अर्सा पहले तक मौसम गर्मा की रुखसती के साथ ही सयाह भी इन इलाकों से रुखसत हो जाया करते थे, मगर हालिया चंद बरसों में गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में खिजा के मौसम में सयाहों की आमद से इलाकाई मईशत में बेहतरी आ रही है। याहिया खान, ABN न्यूज़, स्कर्दू। हर शहर हर खबर से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।